Hello everyone, I'm Priyanka Shah and welcome to my YouTube channel Mathlite. In this video we'll start with a new topic, that is expansions. So in this video we learn about expansions of squares. Okay, सिर्फ squares जो है उनका expansions. Now what is basically expansions? If you notice over here, हम लोग brackets को expand कर रहे हैं यहाँ पे. Okay, that is why we are calling it expansions. Brackets को expand कर रहे हैं. We don't want brackets. Okay, so ये bracket को expand करके क्या form में I can write it down. So these are the identities. These are the basic identities. First three तो you must be familiar with because you must have learnt it in lower classes. A plus b the whole square. A plus b the whole square is nothing but a square plus 2ab plus b square. A minus b the whole square is a square minus 2ab plus b square. And third one, it is not a square but it is a plus b into a minus b. Square नहीं है यहाँ पे, दो different brackets है, but this is a very very important identity. So a plus b into a minus b is a square minus b square. ये दो I would say even if you don't know it is alright, because if you know first three identities then you can solve every question of squares in this chapter. Okay, so first three identities पता होना चाहिए. Okay, so these are the basic identities that you're supposed to know. Alright, now you must be knowing कैसे a plus b the whole square is a square plus 2ab plus b square. Okay, so but still let us understand how we get a plus b the whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. Now a plus b the whole square is a plus b into a plus b, करेक्ट. स्क्वायर है मतलब ये जो ब्रैकेट है मल्टीप्लाइड बाय द ब्रैकेट इट सेल्फ. ओके, ट्वाइस है ब्रैकेट्स. सो व्हाट वील डू, वील एक्सपैंड. ये जो फर्स्ट ब्रैकेट दिख रहा है ना उसका ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं एंड हर एक टर्म को वील मल्टीप्लाई विद द सेकेंड ब्रैकेट. सो जो फर्स्ट टर्म है मल्टीप्लाई इट विद फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट एंड जो सेकेंड टर्म है मल्टीप्लाई इट विद द सेकेंड ब्रैकेट. So a into a plus b and then b into a plus b. A into a gives a square. A into b gives ab. B into a is nothing but ab. I can write it as ab. B square. B into b, b square हो जाएगा. ab plus ab 2ab हो जाएगा. So this is how we get a square plus 2ab plus b square. Same thing with a minus b the whole square. A minus b into a minus b हो जाएगा. Okay, so let us go through that as well. Let us understand how we get a square minus 2ab plus b square. Now a minus b the whole square, it is a minus b into a minus b. Okay, first term into the second bracket, so a into a minus b. माइनस बी है, साइंस जो एसोसिएटेड है साइंस के साथ लिखो. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो यहाँ पे बी के साथ देयर इज माइनस साइन एसोसिएटेड, सो माइनस साइन साथ में आएगा. a into a gives a square. a into b gives ab. ओके, माइनस ए बी हो जाएगा. ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है. माइनस बी इंटू ए दैट गिव्स माइनस ए बी माइनस बी इंटू प्लस ए है. सो माइनस बी ए दैट इज नथिंग बट माइनस ए बी. आई कैन राइट इट एज, ठीक है, माइनस ए बी लिख सकती हूँ मैं. माइनस इंटू माइनस प्लस बी इंटू बी, बी स्क्वेयर. माइनस ए बी गिव्स माइनस 2ab. So a square minus 2ab plus b square
These are very easy proofs, okay? I assume that you are actually knowing this, but still let us understand कैसे आता है. Third one now, a plus b into a minus b. So a plus b into a minus b. First term into second bracket, then second term into second bracket. So this into a minus b. साइन जो एसोसिएटेड है साथ में, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू माइनस बी माइनस ए बी, प्लस बी इंटू ए प्लस ए बी. ओके, b इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस. ओके, ये कैंसिल आउट हो जाएगा. वी आर लेफ्ट विथ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो दीज आर द बेसिक आइडेंटिटीज. ये फर्स्ट 3 बेसिक आइडेंटिटीज है जो पता होना चाहिए. ओके, सो 4th and 5th वन ये डिराइव्ड है. ओके, दीज आर द डिराइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकेंड वन. फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड करके ये वाला मिलेगा, एंड फर्स्ट एंड सेकेंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करके ये वाला मिलेगा. ओके, सो फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड करते हैं, a प्लस बी द होल स्क्वायर एंड a माइनस बी द होल स्क्वायर. a प्लस बी द होल स्क्वायर एंड a माइनस बी द होल स्क्वायर. वी आर एडिंग फर्स्ट 2 आइडेंटिटीज. नाउ a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या है? एक्सपैंड करो, ब्रैकेट्स नहीं चाहिए, एक्सपेंशंस में ब्रैकेट्स नहीं चाहिए. Okay, so we are expanding the brackets using these identities. So a plus b the whole square is nothing but a square plus 2ab plus b square. इसको भी expand करते हैं तो ये हो जाएगा, पॉजिटिव साइन है बाहर में, so no problem. So a square minus 2ab plus b square. Now plus 2ab minus 2ab cancel हो जाएगा. We are left with a square plus a square. That gives 2a square. b square plus b square. That gives 2b square. 2 मैं कॉमन ले सकती हूँ, सो हो जाएगा a square plus b square. So this is what we got. So even if you don't know this identity, it's all right. Because first 2 आता है तो दोनों को ऐड करके you can easily solve this. सिर्फ 2 steps extra हो जाएगा. Okay. So it's up to you whether you want to learn this identity or not, because these are not really important, but if you can then it well and good. All right, but first 3 आना चाहिए. First 3 are very very important. Now subtracting the second from the first. Keep in mind second को subtract कर रहे हैं. Okay, a minus b जो है उसको subtract कर रहे हैं, not a plus b. a plus b में से a minus b the whole square वाला subtract करेंगे. Okay. So a plus b the whole square minus a minus b the whole square. Now we'll again expand करते हैं दोनों ब्रैकेट्स को. So ये हो जाएगा a square plus 2ab plus b square, एंड ये माइनस साइन है बाहर में, so put brackets. a square minus 2ab plus b square. Okay. a square plus 2ab plus b square. Now the signs will change. ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, एंड ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा. ओके, a square will get cancelled, b square will also get cancelled. 2ab plus 2ab, that will give 4ab. Alright, so 4th and 5th वाला easy है, फर्स्ट एंड सेकेंड में से डिराइव्ड है, सो ये ऑर्डर में याद रखोगे देन ये 2 भी याद रखना ईजी हो जाता है. ओके, सो इफ यू वांट टू मेमोराइज इट इन दिस ऑर्डर, इट विल बिकम वेरी वेरी ईजी फॉर यू. ऑलराइट, नाउ व्हाई आर दीज कॉल्ड आइडेंटिटीज? दे आर कॉल्ड आइडेंटिटीज बिकॉज these expansions are applicable for each and every value of a and b. मैं a एंड b को पॉजिटिव ले सकती हूँ, नेगेटिव ले सकती हूँ, ज़ीरो ले सकती हूँ. ओके, इवन डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, तो भी these identities are applicable. ओके, सो
let us consider few examples. Let us see if these identities are applicable for every number. Now I'll consider the basic identities. ये जो first three है basic वाला वही consider करती हूँ मैं. Now a plus b the whole square. a का कुछ वैल्यू कंसिडर करते हैं, b का कुछ वैल्यू कंसिडर करते हैं, एंड लेट अस सी इफ LHS का जो आंसर आता है इट इज इक्वल टू RHS और नॉट. LHS सेपरेटली सॉल्व करते हैं, RHS सेपरेटली सॉल्व करते हैं. ब्रैकेट अलग से करेंगे और ये एक्सपैंडेड फॉर्म अलग से करेंगे. ओके, नाउ a प्लस b द होल स्क्वायर इज दिस. फॉर्मूला इज ऑलरेडी गिवन ओवर हियर. a मैं अज्यूम करती हूँ टू बी लेट्स से 1 and b is let's say 5. okay, now LHS क्या है? a plus b the whole square. a is 1, b is 5 the whole square. 1 plus 5 क्या होता है? 6. 6 का स्क्वायर, 6 square is 36. now let us check RHS. So RHS is equal to a square plus 2ab plus b square. okay, a क्या है? 1 है, b क्या है? 5 है. so हम लोग ये वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं. 1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 एज इट इज़ रहेगा इंटू a दैट इज़ 1 इंटू b दैट इज़ 5 प्लस b स्क्वायर दैट इज़ 5 स्क्वायर. 1 square is 1, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 5 5s are 25, 5 square है. 1 plus 10 11, 11 plus 25 36. yes, LHS and RHS दोनों सेम है, मतलब ये आइडेंटिटी वैलिड है. ओके, टेक सम रैंडम नंबर, सब्सटीट्यूट करके देखो, यू शुड गेट LHS इक्वल टू RHS. ओके, नाउ व्हाट इफ द नंबर्स आर नेगेटिव? नेगेटिव होगा तो भी एप्लीकेबल है, पॉजिटिव होगा तो भी एप्लीकेबल है, जीरो लोगे तो भी एप्लीकेबल है. ओके, नाउ लेट मी कंसिडर द सेकेंड आइडेंटिटी. ओके, एंड विल टेक डिफरेंट नंबर्स. नाउ फॉर द सेकेंड केस आई एम टेकिंग a as 4 and b as -2. एक पॉजिटिव नंबर लेते, एक नेगेटिव नंबर लेते. लेट अस सी. नाउ LHS क्या है? LHS is a minus b the whole square. okay, a is 4 minus b क्या है? -2 है. so put brackets, ये होल थिंग का स्क्वायर है. ओके, a 4 है, b -2 है, इन बिटवीन देयर इज माइनस साइन. ओके, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. सो 4 प्लस 2 स्क्वायर दैट इज व्हाट? 6 का स्क्वायर दैट इज 36. ओके, सो यहाँ पे 36 मिला है. लेट अस चेक इफ वी आर गेटिंग द सेम थिंग फॉर RHS. सो RHS a square minus 2ab plus b square. a 4 है, b -2 है. a 4 का स्क्वायर -2 into 4, b is -2. don't forget the sign, you have to put it along with the sign. all right, b is -2, so -2 का स्क्वायर है. 4 square is 16, 2 4s are 8, 8 2s are 16. माइनस माइनस प्लस. ओके, प्लस यहाँ पे -2 है. 2 का स्क्वायर क्या है? 4. नाउ कीप इन माइंड, नेगेटिव साइन का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव. नेगेटिव नंबर होगा बट उसका स्क्वायर लोगे ऑलवेज पॉजिटिव होगा, बिकॉज -2 इंटू -2 हो जाएगा. माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. 2 इंटू 2 4 हो जाएगा. एनी नंबर, एनी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो -2 हो, -100 हो, -5000 हो, स्क्वायर इज पॉजिटिव.
सो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा. 16 + 16 + 4, 16 + 4 क्या हो जाएगा 20, 20 + 16 36. यस, LHS एंड RHS सेम है, मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव नंबर भी लोगे तो भी एप्लीकेबल है. ओके, दोनों नंबर्स नेगेटिव लोगे तो भी एप्लीकेबल है. यू कैन ट्राई दैट आउट. अब मैं थर्ड आइडेंटिटी कंसिडर कर रही हूँ. लेट अस चेक इफ वी आर टेकिंग सम अदर नंबर, इज इट वैलिड. ओके, लेट अस चेक द LHS एंड RHS. नाउ फॉर द थर्ड आइडेंटिटी आई हैव टेकन A = 7 एंड B = 0. एक नंबर 0 लेके देखते हैं. नाउ LHS क्या है? A + B × A - B. A is what? 7. B is 0. So substitute the values. 7 + 0 × 7 - 0. 7 + 0 7, 7 - 0 भी 7. 7 7s are 49. Okay. Now let us check the RHS. RHS क्या है? A² - B². Okay. Now A², that is 7 का square minus 0 का square. 7 square is 49 minus 0 का square is 0. 49 minus 0 is 49. So yes, LHS is equal to RHS. Now what if we do the other way around? A को 0 लेते हैं, B को 7 लेके देखते हैं. So A is 0, B is 7. Now let us substitute the values. A 0 है, so 0 + 7 × 0 - 7. 0 + 7 7 है, 0 - 7 -7 है. So this gives -49. 7 × -7 है. So एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा. प्लस इंटू माइनस गिव्स माइनस. सो -49. लेट अस चेक द RHS. A is 0, 0 का स्क्वायर. B is 7, 7 स्क्वायर. ये 0 होगा, ये 49 होगा. 0 - 49 is -49. -49 - 49. So LHS is equal to RHS. So this is applicable for all the numbers. Okay. Now same thing applies for the remaining two identities. These are the derived identities. So obviously अगर ये 3 true है तो ये भी true होगा. Okay. Now there are a few more identities that you need to know. Now what we'll do is A को A ही रखते हैं and B को we'll take 1/A. Okay. And what was the first identity? First identity was A + B the whole square. A + B the whole square is equal to A² + 2AB + B². So let us apply A equal to A and B equal to 1/A. Now A + B the whole square is equal to A² + 2AB + B². B क्या है? 1/A है. So let us put 1/A. Okay. So A तो as it is रहेगा. A² + 2AB. 2 × A × B is 1/A plus B², that is 1/A the whole square. A cancel हो जाएगा. A² + 2 × 1 रहेगा. A कैंसिल होके सिर्फ 1 बचा है. 2 × 1 gives 2. 1 का स्क्वायर इज 1. A² is A². So A + 1/A the whole square is equal to A² + 2 + 1/A². Okay. So this is the identity you are supposed to know. Okay. So A + 1/A the whole square is equal to A² + 2
प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर. नाउ सेकेंड आइडेंटिटी क्या था? a माइनस बी द होल स्क्वायर. ओके, सो लेट अस पुट माइनस. a का स्क्वायर विल गिव a स्क्वायर. माइनस 2ab है, सो माइनस 2 इंटू ए इंटू 1 अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन ए स्क्वायर. ए स्क्वायर ही रहेगा. माइनस 2 इंटू 1 दैट इज माइनस 2, सो ये माइनस 2 हो जाएगा. एंड प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, सो 1 का स्क्वायर इज 1 एंड ए का स्क्वायर इज ए स्क्वायर. वेरी वेरी इजी. मैंने सिर्फ यहाँ पे ही सब्सटीट्यूशन कर दिया है, एडिट कर दिया है यहीं पे. ओके, सो वेरी इजी. सिर्फ माइनस 2 हो जाएगा. ओके, सो ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर. ऑलराइट, it's okay even if you don't know these identities, but I would suggest that you actually learn these identities. So अगर a plus b the whole square and a minus b the whole square आता है तो ये learn करना easy है. Okay, now a plus b into a minus b, so that is nothing but a plus b into a minus b is what? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर हो जाएगा. बी स्क्वायर क्या है? बी इज 1 अपॉन ए, सो माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर मिलेगा. लेट अस चेक. ए प्लस 1 अपॉन ए टू ए माइनस 1 अपॉन ए. नाउ इफ यू वॉन्ट यू कैन एक्सपैंड इट प्रॉपरली. फर्स्ट टर्म इंटू द सेकेंड ब्रैकेट प्लस सेकेंड टर्म इंटू द सेकेंड ब्रैकेट. बट वट आई विल डू इज डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. b क्या है? 1 अपॉन ए है. 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है. एंड a का स्क्वायर, सो दैट इज वाई वी रोट डायरेक्टली a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर. ओके, नाउ द नेक्स्ट टू आइडेंटिटीज आर डिराइव्ड आइडेंटिटीज. डिराइव्ड मतलब क्या? फर्स्ट टू में से डिराइव करके हुआ है. फर्स्ट टू को ऐड करके आइडेंटिटी का कुछ मिलेगा एक्सपेंशन, एंड फर्स्ट टू को सब्ट्रैक्ट करके कुछ एक्सपेंशन मिलेगा. ओके, सो फर्स्ट टू को ऐड करके क्या एक्सपेंशन होता है? इसका एक्सपैंडेड फॉर्म क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर. इसका एक्सपैंडेड फॉर्म क्या है? ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर. वी आर एडिंग, सो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गिव्स 2a स्क्वायर. 2a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 माइनस 2 0 हो जाएगा. सो प्लस 0 है. 1 upon a square plus 1 upon a square, so that is nothing but 2 into 1 upon a square, so that is 2a square plus 2 upon a square. 2 कॉमन ले सकते हैं, so क्या बचेगा? a square plus 1 upon a square. So this is the expanded form. 2 into a square plus 1 upon a square. Okay. Now over here we have bracket because 2 common है. ओके, बट क्या हो रहा है? ये पूरे ब्रैकेट्स को हम लोग ने सॉल्व कर दिया. ओके, ब्रैकेट्स को एक्सपैंड किया एंड जो भी कैंसल आउट हो रहा है या जो भी ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ओके, दैट वी डिड एंड देन इवेंचुअली वी गॉट दिस. सो वी आर एक्सपैंडिंग द ब्रैकेट्स ओवर हियर. ओके, नाउ वील सब्ट्रैक्ट. फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करना है. प्लीज कीप दैट इन माइंड. पॉजिटिव वाले में से नेगेटिव वाले को सब्ट्रैक्ट करना है, अदरवाइज योर आंसर विल कम नेगेटिव. सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करके देखो, नेगेटिव आएगा. ओके, सो नाउ सब्ट्रैक्टिंग दिस फ्रॉम दिस. नाउ ये एज इट इज रहेगा. ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर. इसका एक्सपैंडेड फॉर्म है ये, इसका एक्सपैंडेड फॉर्म ये है. सो माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग उसको. ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर. नाउ वील ओपन द ब्रैकेट. सब साइंस चेंज हो जाएगा. सो क्या हो जाएगा? मैं यहीं पे चेंज कर लेती हूँ. ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा एंड ये नेगेटिव हो जाएगा. ओके, सो ए स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड. 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. 2 प्लस 2 गिव्स 4. सो 4 मिलेगा.
If you take the other way around, -4 आएगा आंसर. Now these are the identities, these are the expansions of squares that you're supposed to remember. These 10 identities. Again I'll say, ये first 3 को memorize करो. ये नहीं भी आता होगा तो भी चलेगा. First 2 को add या subtract करके you can easily solve. So ये first 3 को याद रखो. Okay, and the original first 3. Alright, so 1, 2 and 3 and 6, 7 and 8. ये याद रखना है. If you know these, then you can easily solve these ones as well. Alright. Now over here, a cannot be equal to 0. Okay, in this case, a cannot be equal to 0. ये 5 identities के लिए it is applicable. So a, but why? I had told you earlier जब हम लोग ने first 5 identities किया that a and b का कोई भी value हो सकता है. But why a should not be equal to 0 in this case? There is a reason. 1 upon a है. Okay? यहाँ पे b की जगह पे 1 upon a है. अगर a 0 होगा तो क्या हो जाएगा? 1 upon 0 हो जाएगा. Okay? 1 upon 0 means what? You are dividing 1 by 0. That means 0 into something is giving you 1. How is that possible? Maths में 0 into anything is equal to 0. Okay? Now अगर a 0 होगा तो क्या हो जाएगा? Because we have 1 upon 0. 1 upon 0 means 1 divided by 0. Okay? So 1 को divide कर रहे हैं by 0 मतलब 0 into this some number will give me 1. 0 into what will give me 1? 2, 3, 4, 100,000, lakhs, crores. No, 0 into any number is equal to 0. That is what we have learned. Mathematically, 0 into anything is 0. So, 0 into something is giving me 1 over here. That is 1 upon 0 है. How is that possible? So, ये wrong है. Alright? So, ये 5 आइडेंटिटीज़ के लिए प्लीज़ कीप इन माइंड a cannot be equal to 0. Yes, जो हम लोग ने पहले का 5 आइडेंटिटीज़ किया, in that every value is applicable. But over here we cannot take a equal to 0 because a 0 denominator में है. a is in denominator and therefore 0 हो जाएगा in denominator. So you can see for yourself, mathematically it is incorrect. So this is the reason why a cannot be equal to 0 in these 5 cases for these 5 identities. So you need to keep that in mind. Okay? So I hope it is clear to you.